Students, we were doing the topic speed. Let us discuss the various types of speed. Now the first is uniform speed. A particle is said to be moving with uniform or constant speed if it travels equal distance in equal intervals of time, howsoever the small intervals they may be. That means कि अगर कोई पार्टिकल जो है जब वो मूव कर रहा है और वो कैसे डिस्टेंस कवर करें, इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम कहेंगे उसकी बॉडी की जो स्पीड है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग. हियर आई एम राइटिंग द डिस्टेंस and here I am writing the time interval. Now let us say first 5 kilometer distance the body cover in 2 hours, and next 5 kilometer distance the body again take time 2 hours, again further 5 kilometer distance it take time 2 hours. Means to cover the 5 kilometer distance the body always takes same time, that is 2 hours. Means equal distance covering in equal time. So in this case if you find the speed of a body in this time interval, अगर आप इस time interval में इसकी speed निकालो, so that will be equal to distance upon time. Distance 5 kilometer और time है 2 hour, that is 2.5 kilometer per hour. Again if you find here the time, the speed will also equal to 2.5 kilometer per hour, and similarly for this case also. So you just see that every time the speed of the body is constant, it is remains the same. That means the body is moving with uniform speed. Next is the variable speed. A particle is said to be moving with variable speed if it travels unequal distances in equal intervals of time, or you can also say equal distances in unequal intervals of time, howsoever small these intervals of time may be. कि अगर कोई बॉडी जो है वो वेरिएबल स्पीड से कब मूव करेगी, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर इसका रिवर्स भी कह सकते हो कि अगर वो एक जैसा इक्वल डिस्टेंस कवर करे लेकिन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम कहेंगे बॉडी की स्पीड कैसी होगी, वेरिएबल स्पीड होगी. लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. So distance and time interval, that is the time taken to cover the distance. If I say in first 2 hours, first 2 hours में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर का, एंड इन नेक्स्ट 2 आवर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया कि टाइम जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इक्वल टाइम इंटरवल में चेक करते हैं कि बॉडी क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. तो नेक्स्ट 2 आवर्स में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, लेट इट बी 4 किलोमीटर, एंड इन नेक्स्ट 2 आवर्स बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, लेट इट बी 6 किलोमीटर. ओके, लेट्स फाइंड आउट द स्पीड हेयर. सो हेयर द स्पीड विल बी distance upon time, that is 5/2, that is 2.5 kilometer per hour, and here the speed will be equal to 4/2, that is 2 kilometer per hour, and here it will be 6 divided by 2, so it will be 3 kilometer per hour. So you just observe that here the speed that we are calculating, it is not same. यहाँ पर speed 2.5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. मीन्स बॉडी जो है वो एक जैसी स्पीड से मूव नहीं कर रहा. कैसे मूव कर रहा है, अनइक्वल स्पीड से मूव कर रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे कि बॉडी कैसे मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज द, I have written some in another way, that is the speed of a particle is variable if it travels equal distance in unequal intervals of time, that I explain you. Next is the average speed. Average speed क्या है यहाँ पर? Average speed is the ratio of total distance traveled by the body to the total time taken. जब
कोई बॉडी जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव करती है, मतलब उसकी स्पीड जब सेम नहीं रहती है तब हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड को। और एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो है टोटल डिस्टेंस निकालो कि बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना चला और उसने कितना टोटल टाइम लिया उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड को आपने शॉर्ट में लिख दिया VAV और या V के ऊपर बार लगा दिया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को मैंने यहाँ del x से रिप्रेजेंट किया और टाइम टेकन को मैंने del t से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास एवरेज स्पीड का। नाउ वी विल फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। अब डिफरेंट सिचुएशंस क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था वेरिएबल स्पीड के केस में हमने टू डेफिनेशंस पढ़ी, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, कि एक बार हम डिस्टेंसेस को सेम रखते हैं और देखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कितने अलग अलग टाइम में अगर वो ट्रैवल कर रही है, और दूसरा केस में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसके बेसिस पे हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूलेज जो हैं वो डिराइव करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है बॉडी ट्रेवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, कि अगर बॉडी जो है डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है अलग अलग स्पीड से, विद डिफरेंट स्पीड से, क्योंकि वेरिएबल स्पीड की हम बात कर रहे हैं। सो हियर लेट अस कंसीडर ए बॉडी विच ट्रेवल्स S1 डिस्टेंस विद स्पीड V1। S1 डिस्टेंस उसने कवर किया कितनी स्पीड से, V1 स्पीड से, और नेक्स्ट S2 डिस्टेंस कवर किया उसने कितनी स्पीड से, V2 स्पीड से। अब हमें टाइम निकालना है कि S1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया। टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, स्पीड दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर मैंने S जो है S रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंसेस और V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीड। ठीक है, तो टाइम S1 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो लिया दैट विल बी S1 अपॉन V1, और S2 डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया वो आ गया हमारे पास S2 अपॉन V2। ठीक है, अब टोटल टाइम निकालने की, टोटल टाइम कितना हुआ, T1 प्लस T2, ये वैल्यू पुट कर दी। एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला हमने लर्न किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 और प्लस S2, और टोटल टाइम अभी हमने ये फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जो बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रही है, कि हमने फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस जो हम डिफरेंट डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट डिस्टेंस S1 और S2 जो है वो सेम है, इक्वल डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो S1 इक्वल टू S2 लेट इट बी इक्वल टू S। किसके इक्वल ले लिया, S के इक्वल ले लिया, तो इनकी जगह मैं S पुट करूँगी, आई विल गेट 2S हियर, और S को हम कॉमन ले लेंगे, S बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो S से S कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। मीन्स अगर कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही हैं विद डिफरेंट स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से, तो उस केस में उसकी एवरेज स्पीड आप इस फॉर्म से निकाल सकते हो, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। हम इसको मैथमेटिकली, ये क्या है, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हों V1 एंड V2 हों और आप इसका ये फाइंड आउट करो, आप ऐसे रिप्रेजेंट करो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इसे हम कहते हैं इन टू वैल्यूज़ का हार्मोनिक मीन। क्या कहेंगे इसका, हार्मोनिक मीन। तो जो दो वैल्यूज़ का हार्मोनिक मीन होगा वो हमारी क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी। नाउ सेकेंड केस इज बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ठीक है। अब टाइम फैक्टर को हम लेके चलेंगे यहाँ पर, तो हमने कहा लेट ए बॉडी मूव विद वेलोसिटी v1 v2 v3 इन टाइम इंटरवल t1 t2 t3 एंड सो ऑन, कि बॉडी जो है अलग अलग वेलोसिटीज से मूव कर रही है डिफरेंट टाइम्स में।
तो डिस्टेंस हम निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करिए, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस अगर मैं देखूं कि यहाँ पर t1 टाइम में जब वो मूव करी है v1 स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट डिस्टेंस आएगा v1 t1, सेकेंड टाइम के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया v2 t2, सिमिलरली फॉर थर्ड एंड देन सो ऑन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस जस्ट वी हैव फाइंड आउट, देन टोटल टाइम सबको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर स्पेशल केस लगाते हैं कि अगर टाइम इंटरवल जो हैं वो हमने इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो लेट इट ऑल टी टाइम्स आर इक्वल टू टी। व्हेन यू पुट इट हेयर टी को कॉमन लेंगे और t1 प्लस t2 ये जो है इसको हम अगर ये n टाइम्स तक है, n टाइम्स तक हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू टी। टी से टी कैंसिल, हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो किसके इक्वल आ गई,